Hi students, today in this video we go for standard 5 English passage comprehension page number 74 and we do now the exercises of the passage that we read in the previous video, the passage of the short story of Oliver, and now we go for the question answers of this paragraph. And these are the question answers of that passage. Answer the following. Number 1, why did Oliver live in orphanage? मीन्स जो ऑलिवर जो बॉय था वो ऑर्फनेज में अनाथ आश्रम में क्यों रहता था? आंसर, ऑलिवर लिव्ड इन ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस. ऑर्फनेज में कौन रहता है? जिसका अपना घर नहीं होता है. तो ऑलिवर भी वैसा ही बच्चा था कि जिसका कोई घर नहीं था. सो दैट्स वाई ही लिव्ड इन ऑर्फनेज. नाउ वी गो फॉर सेकेंड. Who was Mr. Bumble? Answer, Mr. Bumble was the owner of the orphanage. The meaning of question is that Mr. Bumble कौन थे? The answer is कि जो मिस्टर बम्बल थे वो इस ऑर्फनेज, ये जो अनाथ आश्रम था जहाँ पे ऑलिवर रहता था, उसके ऑनर थे, उसके मालिक थे. नंबर 3 इज व्हाट मील्स वेर द बॉयज गिवन? मीन्स व्हाट मील्स, मील्स यानी खाना. उनको जो खाना मिलता था दिन में 3 टाइम मिलता था, तो वो क्या उनको दिया जाता था मील में, खाने में? आंसर, द बॉयज वेर गिवन अ बाउल ऑफ वाटरी सूप. उनको खाना क्या मिलता था? तो एक छोटा सा बाउल जिसमें पानी जैसा सूप होता था, वाटरी सूप, तो वो उनको दिया जाता था. सो दिस इज द आंसर. एंड नाउ वी गो फॉर द अनदर क्वेश्चन. And here is number 4, that what did Oliver say to Mr. Bumble? मीन्स ऑलिवर ने जो है मिस्टर बम्बल यानी जो ऑनर थे ऑर्फनेज के, उनको क्या कहा? आंसर, ऑलिवर साइड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप. ऑलिवर जो था वो जिसको खाना पूरा नहीं मिलता था, तो उसने डिमांड की मिस्टर बम्बल से कि मुझे थोड़ा और सूप चाहिए. सो दिस इज द आंसर. एंड नाउ वी गो फॉर नंबर 5. द बॉयज वेर गिवन 3 meals a day. देन वाई वेर दे ऑलवेज हंग्री? दिस इज द क्वेश्चन दैट द बॉयज वेर गिवन, यानी जो बच्चे थे अनाथ आश्रम में, उनको दिन में 3 meals यानी 3 टाइम उनको खाना मिलता था. बट देन वाई, फिर भी वो क्यों भूखे रहते थे? आंसर, because the soup they were given was never enough. These are the MCQs, and number 5 question is for MCQ, and you have to select correct option, and the correct option is number A, that because the soup they were given was never enough. So this is the answer. And now we go for the another question. And here is question number 6, that find the words from the passage that mean the same as. Here we have to find the meaning words of these given words from the passage, means from the paragraph that we read in the previous video. Number 1, very hungry. We have to find the meaning of very hungry from the passage, and it is this word we can find from paragraph number 2, and the word is starving. Starving means suffering from hunger, यानी भूख से सहन करना, बहुत भूख, तो उसका मीनिंग होता है starving means very hungry. Number 2 is to vanish, and this word we can find from the paragraph number 3, and the meaning of this is disappeared. To vanish यानी अदृश्य हो जाना, means ख़त्म हो जाना. Here the meaning of that word is disappeared. So these are 2 meaning words that we find from the paragraph number 2 and 3. And now we go for another question, that all the boys assembled in the cold stone hall. Here the word assemble means
here the sentence is given to you in the passage that all the boys assembled in the cold stone hall, means ये ऑल द बॉयज़ जो ऑर्फनेज के जो बॉयज़ थे वो कहाँ पे असेंबल हुए, कहाँ पे गैदर हुए, द कोल्ड स्टोन हॉल। हियर द वर्ड, हमें यहाँ पे असेंबल्ड जो वर्ड है उसका मीनिंग हमें देना है कि असेंबल का मीनिंग क्या होता है। एंड द आंसर इज कलेक्टेड, मीन्स सब वहाँ पे गैदर हुए, जमा हुए वहाँ पे। सो हियर द मीनिंग ऑफ असेंबल्ड इज कलेक्टेड, गैदर्ड। So now we go for next question, and here is question number 8, that from the word assembled remove the last two letters, add one letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers। हियर हमें क्या करना है कि assemble जो वर्ड है उसमें से removed the last two letters, यहाँ पे असेंबल्ड वर्ड के लास्ट टू लेटर्स हमें रिमूव यानी निकाल देने हैं। लास्ट टू लेटर कौन से है, ई और डी, वो हमें निकाल देने हैं। और ऐड वन लेटर, और एक ही लेटर हमें ऐड करना है, और उसका मीनिंग होता है कि अ टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स, यानी पूरी स्कूल जब एक साथ जहाँ पे रहती है, एक साथ कनेक्ट होती है, मीन्स वहाँ पे गैदर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं। देन द आंसर इज असेंबली। हियर वी ऐड ओनली वाई आफ्टर बी एल, मीन्स हमने ई डी निकाल दिया और सिर्फ वाई ऐड किया। सो दिस इज द आंसर, दैट असेंबली जब सुबह के टाइम होता है, प्रेयर टाइम, तब पूरा स्कूल वहाँ पे गैदर होता है। सो दिस इज द आंसर। And now we go for the last question, that give a suitable title to the passage. Means here we read a short story of one boy named Oliver, and here we have to give the title for this story. Means यहाँ पे हमें शीर्षक देना है, स्टोरी का हेडिंग देना है। So I write here Oliver in orphanage। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओलिवर जो है वो अनाथ आश्रम में है, तो उसकी कौन सी कंडीशन है, तो मैंने वो टाइटल दिया है। बट यू हैव टू राइट अनदर टाइटल विच यू वांट टू गिव टू द पैसेज। मीन्स आप कोई और भी टाइटल, जैसा आपने इस पैराग्राफ में आपने जो भी यहाँ इसमें से गेट किया है उसके ऊपर से आप कोई और भी टाइटल इसका दे सकते हो। बट आई गिव ओलिवर इन ऑर्फनेज, मैंने ऐसा टाइटल दिया है। बट यू कैन गिव अनदर टाइटल अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़, मीन्स आप अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन से यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ that comprehension, and you have to read all the questions and answers and repeat in your English notebook. Thank you.